In all the Indian examination, there is a one question: how to prepare the LRD, what to do, what is the syllabus, what type of questions are there in the LRDI section, right? My suggestion for you people: solve past at least 5 years papers for the CAT and Z, right? If you're saying, okay, I'm not going into the Z examination, but still I suggested please solve the past year, 5 years CAT and Z papers, particularly the logical reasoning and data interpretation section, right? And whatever is happening around you, national or international, right? Just keep a watch, just keep a track of all those things, right? Very recently, we have finished with, say, India and West Indies cricket tournament series, right? Little back, we have done with the tennis, the Wimbledon was there. Okay, now by the time you will be there in the examination, the World Cup is there, schedule and everything is there, right? And this time in India, India is hosting the World Cup, right? So all these things will be there. So I suggest everyone to just keep a watch all those things, right? This is about the political thing, sports thing. But if you talk about the political election of president, election of prime minister, right? All those things might be there uh, as a question, as a data set for you in the LRDI section, right? So we will be just discussing a some part here, and I have taken as a some sets here. Towards the end, we will be discussing some sets, right? Now, so LRDI, as we have discussed, there is a no specific syllabus, right? So what to do? What to do? This is not having any defined syllabus, but challenge is what? Unfamiliarity with the topic, right? So practice makes you a perfect for this section, right? And what to practice? The past 5 years papers, right? Okay. Now read these the first paragraph. The truth is that because most aspirants avoid this section and are not well prepared, right? Well prepared, getting a good percentile in easier due to low sectional performance. See, you're getting a relative percentile, right? We are having a relative ranking, relative percentile in this section. And because most of the candidates in the examinations नॉर्मली इग्नोरिंग दिस सेक्शन देख लेंगे वहीं पे कर लेंगे है ना हो जाएगा एलआरडीआई तो है लॉजिक ही तो आता है अरेंजमेंट के क्वेश्चंस आते हैं कैलकुलेशन आता है कैलकुलेटर तो मिलता ही है वहां पे है ना तो all these others say just I can say excuses of the candidates which makes a low performance of the candidates, right? एंड अगर आप इस चीज का थोड़ा सा बेनिफिट लेते हो, राइट? अगर आप थोड़ा सा प्रिपेयर करते हो तो जब बाकी सब खराब कर रहे हैं आप थोड़ा सा अच्छा करोगे तो उसमें आपका परसेंटाइल काफी अच्छा आ जाता है, राइट? सो दिस इज अ गुड चांस फॉर यू टू प्रिपेयर लिटिल बिट एंड गेट अ गुड परसेंटाइल. ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं करने होते हैं हमें, है ना? टोटल 20 questions were there last year and same pattern is expected this year also, right? We'll discuss this कि कितना करना है ना? And this is practically based on only and only practice, right? There is a no defined syllabus, right? No defined syllabus. And see, you should be familiar with the essential tips and tricks of different types of questions, right? Now, if I talk about calculations, so you should be aware of squares, cubes, square root, cube roots, percentage, average,
ratios, right? All these things, mathematical topic, ये हमें अच्छे से prepare करने, right? Now, if I look back and for this section, up till 19, CAT 19, LRDI section was carrying around 32 questions, right? And spreading around 8 sets. But if I come to the last year, the CAT 2022, so total section questions are 66 in the CAT paper, right? But in the DI section, total how many? 20 questions are there. And how many questions? 5 questions per set. So there are total 4 sets, right? And see, it is impossible to solve all the 4 sets, right? ये possible ही नहीं है कि आप defined 40-minute time में सारे sets solve कर पाओ, right? So you should identify what is comfortable for you. आप किस चीज में comfortable हो, किस तरह के data में comfortable हो, किस तरह के logic में comfortable हो, ये आपको identify करना है. और ये कैसे identify होगा? जब आप LRDI के सेट सॉल्व करोगे, आप मॉक्स देना शुरू करोगे, उनको एनालाइज करोगे, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि आप किस तरह के डेटा में कंफर्टेबल हो, किस तरह के डेटा में आपका एक्यूरेसी अच्छा आता है, कहाँ पे आप एरर्स ज्यादा करते हो. तो आपका एक सेग्रीगेशन, एक डिवीजन हो जाएगा कि ये चीज मेरे को अच्छे से करनी है, ये मुझे को टच नहीं करनी, राइट? सो दिस इज बेसिकली द हिस्ट्री. Now, this is the expected thing for this year, CAT 23. We are expecting the same pattern, 20 questions, 40-minute time, 4 sets of 5 questions each, and +3 for the right answer, -1 for the wrong answer, no negative marking for the type-in questions, TETA questions, right? And the main topics, as you people are saying, bar, graphs, arrangement, blood relation, missing data, puzzles, games, right? So these are the sum of the topics. This is not the exhaustive set of type of questions, right? Okay. Now, what is the right strategy? क्या करना चाहिए इस सेक्शन को बीट करने के लिए, इस सेक्शन में अच्छा कट ऑफ करना? So there is what? No particular right approach, right? This is just like every human person, right? Every human person is having a different fingerprints, right? हर इंसान के इस दुनिया में डिफरेंट फिंगरप्रिंट्स हैं, हर इंसान का एक डिफरेंट रेटिना प्रिंट है, राइट? जो हमें एक यूनिक आइडेंटिटी, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन. सेम थिंग इज देयर फॉर द DI एंड LR सेक्शन, राइट? आप मैथ से फॉर्मूले मेमोराइज कर लो, फॉर्मूले रट लो, प्रैक्टिस कर लो, मेंसुरेशन कर लिया, टाइम एंड डिस्टेंस कर लिया, वहां पे हम सब एक प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, पैरा जंबल है, क्रिटिकल रीजनिंग है, वर्बल सेक्शन में भी आ सकते हैं, राइट? बट यहाँ पे जब मुझे को पाथ ही नहीं पता है, मेरे को ये पता है कि मेरा ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये मेरा डेस्टिनेशन है ना? अब किस पाथ से जाना है, किस कौन सा रूट लेना है आपको, है ना? तो वो सबका एक अलग डिफाइंड होगा. एंड बेस्ट थिंग इज कि जैसे आप कहीं भी ट्रैफिक जाम जाम में हो, है ना? तो क्या होता है, अब सभी लोग हैं ट्रैफिक जाम में, कुछ लोग जल्दी निकल जाते हैं, कुछ लोग फंसे रह जाते हैं, है ना? सो दिस इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ ट्रैफिक जाम. अब यहाँ पे जो आपका राइट अप्रोच है, जो आपका राइट हिट है, आप कौन सा सेट पिक करते हो, मैं कौन सा सेट पिक करता हूँ, ये उस पर डिपेंड करेगा कि हम में से कौन उसको सॉल्व कर पाता है, राइट? So there is a no one standard right approach which can be defined, which can be implemented for each and every person. सबका इंडिविजुअल एक अप्रोच होगा, और वो कैसे आएगा? जब आप प्रैक्टिस करोगे पुराने टेस्ट पेपर्स का और मॉक टेस्ट पेपर्स, राइट? सो पर्टिकुलरली देयर आर टू थिंग्स. वन इज टाइम अरेंजमेंट, टाइम मैनेजमेंट. आप कैसे वो 40 मिनट को यूटिलाइज करते हो? And second is the question selection. और क्वेश्चन सिलेक्शन तभी पॉसिबल है जब आप प्रैक्टिस करोगे, राइट?
So this is the thing which I am emphasizing here कि प्रैक्टिस करना बहुत कंपलसरी है और LRDI सेक्शन के लिए आपको अभी राइट वी आर इन अ मिड ऑफ अगस्त एंड एग्जाम विल बी टू द एंड ऑफ नवंबर राइट सो वी हैव अराउंड September, October, November, 3 months almost, and 15 days here around, right? So around 3.5 months, around 100 days. Okay. So हर रोज आपको कम से कम 2 से 3 सेट राइट 2 से 3 सेट 2 से 3 सेट का मतलब क्या हो गया कि 10 से 15 क्वेश्चन 10 to 15 क्वेश्चंस आपको हर रोज करने हैं राइट एवरी डे 10 to 15 क्वेश्चन अगर मैं लोअर वाला लिमिट भी ले लेता हूँ कि आप 10 क्वेश्चंस पर डे कर रहे हो 2 सेट सॉल्व कर रहे हो 100 डेज का टाइम है ना तो क्या हुआ आपने 2 सेट सॉल्व किए हर रोज कर रहे हो 100 डेज में आपके 200 सेट्स और हर सेट में आप मान के चल रहे हो कि 5 क्वेश्चंस है ना 10 क्वेश्चंस आप हर रोज सॉल्व कर रहे हो तो आप नेक्स्ट 100 डेज में कैट तक अप्रोक्सीमेटली 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर राइट तो 1000 is a very well sufficient number to get a good understanding and a command over the LR and DI section है ना अब आपने अगर 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और आपको आने कितने मिलने कितने हैं 20 क्वेश्चन राइट तो 1000 क्वेश्चन में से 20 तो पूरे सेक्शन में है आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं 6 7 8 टू गेट अ 90 95 99 परसेंटाइल राइट तो इतने क्वेश्चंस के लिए बहुत इजीली आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि आपको कौन सा तरह का क्वेश्चन पिक करना है कौन से तरह के सेट्स पिक करना है राइट सो जस्ट अ मिनट Khushbu, yes, blood relation questions are there in the CAT examination, right? बट ब्लड रिलेशन ना उस तरह के नहीं होते हैं जैसे आप नॉर्मली सिंथेसिस या नार्सिमोलॉजी में कहते हो कि ए सेड टू बी हर फादर्स ब्रदर्स डॉटर राइट दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर नॉट देयर इन दिस ब्लड रिलेशन सो टू थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट एंड क्वेश्चन सिलेक्शन अब देखो आपके पास ना टोटल 20 क्वेश्चंस हैं 40 मिनट का टाइम है ना उसमें से आपको बेस्ट 6 7 8 है ना इफ आई गो टिल 99 है ना तो मेरे को 8 क्वेश्चन चाहिए 8 क्वेश्चन आपको 40 मिनट का टाइम है ना तो अगर 8 क्वेश्चन है यू आर हैविंग एवरेज 5 मिनट है ना अब ये जो टाइम है इसको आपको जो है अरेंज करना है इसको आपको मैनेज करना तो क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा गेम नहीं है गेम यहाँ पे क्या है टाइम मैनेजमेंट आप जितना अच्छे तरीके से टाइम मैनेज करोगे उतना ही अच्छा आपका स्कोर आ जाएगा राइट ओके सो बट यस वी विल बी डिस्कसिंग सम टिप्स हियर सो व्हाट इज द राइट स्ट्रेटेजी नाउ सो द बिग क्वेश्चन हियर व्हाट सेट्स am I going to answer and in what order from easy to hard hard to easy what इस क्वेश्चन का आंसर करना है और ये आंसर कैसे होगा आपके पास में टोटल 40 मिनट है फर्स्ट टेक 5 मिनट टू आइडेंटिफाई द सेट्स है ना आइडेंटिफाई सेट्स करो अब लास्ट ईयर एक अच्छा ऑप्शन था आपके पास में उसको आप थोड़ा सा जो एक्सप्लोर करना पहले क्या था कि आप ना जैसे 20 क्वेश्चन है क्लिक क्लिक करते जा रहे हो तो आपको एक एक क्वेश्चन को क्लिक करना है तो अगर 20 क्वेश्चन करोगे 5 मिनट तो इसी में ही निकल जाएंगे राइट तो लास्ट ईयर क्या था देयर वाज अ बटन वो जब आप सेक्शन में जाते हो तो एक बटन था उस बटन पे आप क्लिक करते हो तो जितने भी क्वेश्चंस है ना वो सारे एक सिंगल स्क्रॉलिंग विंडो में आपके सामने आ जाते थे राइट एक नया विंडो ओपन होता था और उसमें सारे क्वेश्चन एक साथ एक स्क्रॉलिंग विंडो में आपके सामने है ना
तो अब आपके पास में ये एक बेनिफिट हो गया कि आपने जैसे ही क्लिक किया इंस्टेंटली वो सारा क्वेश्चंस का सेट, राइट, सारे 20 क्वेश्चन आपके सामने है एंड यू कैन क्विकली स्कैन। तो आप पूरा जो है उसको स्कैन कर सकते हो कि जो आपने कॉन्सेप्ट्स किए हैं जिसमें आपका एक्यूरेसी परसेंटेज अच्छा रहता है, वो कॉन्सेप्ट वो लॉजिक कौन से वाले सेट पे अप्लाई कर रहा है ना। सो यूजिंग दिस नेक्स्ट 35 मिनट, राइट, टू सॉल्व द क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं, राइट। एंड अब ये जो अगले वाले 35 मिनट है इसमें क्या करना है। सो दिस सेट one must keep in mind to solve one set including all the question in 13 to 14 minute maximum, right। वन सेट का मतलब 5 क्वेश्चन है। आपने अगर 15 मिनट भी ले लिए, है ना, 35 में से अगर आपने 15 मिनट भी ले लिए 5 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तभी आपके पास में अभी 20 मिनट्स बाकी है, बैलेंस, राइट। एंड दिस इज मोर देन सफिशिएंट टाइम टू सॉल्व ऑल द सेट्स चूजन। जो भी आप सेट सेलेक्ट कर रहे हो उनको सॉल्व करने के लिए बहुत सफिशिएंट टाइम, राइट। बट ये टाइम तभी सफिशिएंट होगा जब मेरा प्रैक्टिस अच्छा होगा, राइट। ऐसा नहीं है कि वहां जाके कुछ ना एक मैजिक हो जाएगा और वहां जाके जो है मेरे को कुछ एक नॉलेज एनलाइटमेंट हो जाएगा कि अब हम जो है सेट्स को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो कुछ होना है वो अभी होना है एग्जाम से पहले, राइट। सो फॉर दिस यू शुड स्टार्ट सॉल्विंग mock test papers and past year papers, right? Okay. So now there are some key points. Practice mock test. अब प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं है कि आपने एक बार मॉक टेस्ट किया, सॉल्व किया और उसको उठा के रद्दी में डाल दिया, है ना, कबाड़ी वाले को बेच दिया। इफ यू आर सॉल्विंग द मॉक टेस्ट, रिपीटेडली रिवाइज द मॉक टेस्ट, राइट, आफ्टर 15 days, 10 days, 20 days, उस टाइम में जितने भी मॉक टेस्ट हैं उनको आपको रिवाइज करना, राइट। सो डैट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो लॉजिक हैं, वो आपके माइंड में सेटल होते चले जाए। और किसी भी सेट को, किसी भी क्वेश्चन को जब आप मल्टीपल टाइम सॉल्व करोगे, है ना, तो क्या होगा उसमें आपको ना लॉजिक आएगा और उसमें शॉर्टकट्स भी आएंगे कि अच्छा ये पॉइंट हम पिक कर सकते थे, यहाँ से कट शॉर्ट कर सकते थे, ये मेरा की वर्ड हो सकता था, है ना। तो जब आप मल्टीपल टाइम सॉल्व करोगे तभी वहां पे आपके शॉर्टकट्स भी वर्क करेंगे और टाइम मैनेज होगा, राइट। एंड व्हाट टू डू, रिव्यू पास्ट ईयर पेपर्स। तो ये देखो फर्स्ट 2 पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस एंड पास्ट ईयर पेपर्स, कैट एंड जेट, पास्ट 5 years, एटलीस्ट 5 years, राइट। बैलेंस स्पीड विद एक्यूरेसी। अब इसमें फर्स्ट थिंग कहाँ पे आना है, एक्यूरेसी, और सेकंड थिंग क्या होना चाहिए, स्पीड, राइट। हम इसमें उल्टा कर देते हैं, टाइमर लगा के बैठ गए, अरे ये तो 40 मिनट में मेरे को जो है टेस्ट को सॉल्व कर देना है। अब 40 मिनट वॉच रन करती जाती है और दिमाग गर्म होता चला जाता है, राइट। तो क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होते हैं और फिर फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कि हो ही नहीं रहा, क्या करें, कैसे करें, मेरे तो सेट्स गलत हो गए, मेरे तो आंसर्स गलत हो गए, मेरे तो क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहा, मेरे को डेटा नहीं समझ में आ रहा, है ना? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना एक्यूरेसी लगाना है, आपको एक्यूरेसी इंक्रीज करना है। और वो कैसे होगा, जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, राइट। हो सकता है कि 40 मिनट बैठे हो, आपका एक ही सेट सॉल्व हो, 4 या 5 ही क्वेश्चन सॉल्व हो, राइट। बट सॉल्व हुए ना। अब ये जो सेट है जब आप इसको रिवाइज करोगे, सेकंड टाइम थर्ड टाइम जब रिवाइज करोगे, तो ये जो 40 मिनट है ना, ये रिड्यूस होते 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 ये 10 से 12 15 मिनट में आ जाएंगे, राइट। बट एक्यूरेसी इज द फर्स्ट थिंग, स्पीड इज द सेकंड थिंग, राइट। इसको रिवर्स नहीं करना है। अगर आप स्पीड पे पहले जाओगे कि नहीं मैं तो टाइमर लगाना है, मेरे को कुछ जल्दी सॉल्व करना है, तो ना तो स्पीड आएगी और ना ही एक्यूरेसी आएगी।
So accuracy is the first and speed is the second, right? Okay. Analysis, very important thing. जो भी आप सॉल्व कर रहे हो, वट एवर द क्वेश्चन सेट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर, प्रीवियस पेपर, एनालाइज। और एनालाइज करने का मतलब ये नहीं, अच्छा क्वेश्चन नंबर वन आंसर वन मेरा तो सही हो गया, क्वेश्चन नंबर टू आंसर टू ये गलत हो गया, अच्छा इसका आंसर क्या है। सो दिस इज नॉट द एनालिसिस। एनालिसिस इज कि आप उन क्वेश्चंस को एक बार दोबारा से सॉल्व करो, जो एक्सप्लेनेशन गिवन है उसको अंडरस्टैंड करो, उसको रीड करो, उसको समझो। हो सकता है आपका तरीका उससे बेटर हो, या हो सकता है जो एक्सप्लेनेशन गिवन है वो तरीका बेटर हो, राइट? तो यहाँ पे आपको कम से कम दो मेथड तो मिल जाते हैं, एक आपका अपना है, एक आपको एक्सप्लेनेशन में आ गया, राइट? अब उनको जब आप कंबाइन करते हो तब आपके पास में और भी नए मेथड्स, नए फास्टर मेथड्स निकल के आते हैं, राइट? सो एनालिसिस इज इम्पोर्टेंट। एंड सेकेंड थिंग, जो भी सेट्स आप ऑनलाइन ऑफलाइन कर रहे हो उनमें कुछ मार्किंग कर लो, उनका ना कुछ ग्रेडिंग कर लो कि ये जैसे इम्पोर्टेंट वन है, ये इम्पोर्टेंट टू है, ये इम्पोर्टेंट थ्री है, कुछ ना अपना कलर कोडिंग, काउंटिंग, वॉट एवर जैसा भी आप करते हो। फिर क्या होगा कि जब आप एग्जाम टाइम पे जा रहे हो, राइट, नवंबर में, अक्टूबर है, नवंबर में, अब इतना टाइम तो नहीं होगा कि आप पुराने वाले जो है 10 मॉक टेस्ट, 15 मॉक टेस्ट रिवाइज करो। सो जस्ट रिवाइज दोज स्पेसिफिक सेट्स, है ना, जो आपने मार्क किए अकॉर्डिंग टू योर इम्पोर्टेंस क्राइटेरिया, राइट? तो वो मार्किंग करना बहुत जरूरी है। पेपर पे कर रहे हो, पेपर पे मार्किंग कर लो, ऑनलाइन कर रहे हो, ऑनलाइन मार्किंग कर लो, स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लो। पीडीएफ है तो उसमें जैसे ये एज है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, इसमें आप मार्किंग राइट कर सकते हो, जैसे मैंने मार्क किए। तो वो मार्किंग करना बहुत जरूरी है, राइट? एंड देन बिल्ड योर स्ट्रेटेजी। जो 40 मिनट का टाइम है, राइट, उसको आपको डिवाइड करना है कि कैसे आपको प्लान करना है 40 मिनट, राइट? ये जो इस सेक्शन में इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर टाइम मैनेजमेंट रादर देन द स्किल्स, राइट? जिसका टाइम मैनेजमेंट अच्छा रहता है स्कोर अच्छा आ जाता है, राइट? बिकॉज आप उसको सेक्शन को टेक्निक कर लेते हो, सेक्शन को हैंडल कर लेते हो, राइट? बट अगर आप ये देखो कि नहीं मैं तो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, तो नहीं, ठीक वहां पे ना दम नहीं दिखाना है, वहां पे ताकत नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, दिमाग से करना है, राइट? तो कहते हैं ना कि जो लड़ाइयां हैं, जो वॉर है, वो दिमाग से जीते जाते हैं, उसमें स्ट्रेंथ नहीं, है ना? जितना अच्छा आपका स्ट्रेटेजी होगा उतना अच्छा आप फाइट करोगे, राइट? DILR section is important as other sections are also there, right? Because जब आप IIMS में जा रहे हो, right, we are targeting these IIMS, तो वहां पे इंडिविजुअल सेक्शनल कट ऑफ है, और सेक्शनल कट ऑफ के लिए मेरे को DILR अच्छा तो करना ही पड़ेगा, है ना? तो अच्छा तो करना ही है, देयर इज अ नो अदर चॉइस, राइट? यहाँ पे ना जैसे हम कहते हैं कि जो है ये मेरा प्लान बी है, राइट? सो देयर इज अ नो प्लान बी, ओनली वर्क ऑन अ प्लान ए। एंड वो प्लान ए क्या है? DILR सेक्शन मेरे को एटलीस्ट 95 परसेंटाइल स्कोर करना ही है, देयर इज अ नो इफ एंड बट, राइट? So Ishika is saying, I have also given many LRDI set and my performance have improved. Yes, yes, Ishika. तो अब ये ना जो आप इशिका कर रहे हो, तो इनको क्या करना है, आपको ना उन सेट्स को रिवाइज भी करना है, रिपीट करना है ना? और रिपीट करने में सॉल्व नहीं करना है, उनको जस्ट एक स्टोरी की तरह से रीड करो, एक न्यूज़पेपर की तरह से रीड करो। अच्छा ये क्वेश्चन था, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, ये मैंने किया था, बस उसको रीड करो, राइट? और अगर आप रफ वर्क कर रहे हो, आप एक सेपरेट शीट लेके उस पर रफ वर्क कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, तो उस शीट को ना अपने क्वेश्चन पेपर के साथ अटैच करके रखो। उसको थ्रो आउट नहीं करना है, फेंक नहीं देना है, उसको अटैच करके रखो, जिससे जब आप नेक्स्ट टाइम उसको रिवाइज करोगे ना, तो वो देखो कि आपने क्या वर्किंग किए थे, आपने कौन सा पॉइंट पिक किया था, आपने कौन सा फिगर पिक किया था, राइट?
सो डैट कि आपको आइडिया लगेगा कि अरे अगर मैं यहां से स्टार्ट करता तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता, राइट? सो अनुष्का, द ओनली शॉर्टकट टू सॉल्व एलआरडीआई इज प्रैक्टिस, राइट? ऐसा नहीं है कि बाजार में मार्केट में कोई एक टैबलेट है, कोई एक सिरप है एंड आई कैन से कि ओके जाओ वो ले लो टैबलेट, आप खाओगे तो एक टैबलेट लोगे, एक डोज लोगे तो एक सेट हो जाएगा, और 10 दिन का जो मेडिसिन लोगे तो आपका पूरा सेक्शन हो जाएगा। नो, देयर इज अ नो शॉर्टकट, नथिंग, just one thing is there, practice and revision.